Morning students, welcome again to our new class. We are studying our second unit genetic and evolution, in which the first chapter principle of inheritance and variations. In this chapter till now we studied about Mendel's experiment, Mendel's law, and then deviations of Mendel's law. Then after there are three genetical disorders. The first is pedigree analysis, and second is Mendelian disorder, and third was chromosomal disorders. In this Mendelian disorder we discuss about hemophilia. Hemophilia is the disease in which a single protein deficiency, due to whenever any person get injury, then the whole blood of his body is come out from the body and person get dead. So we discuss about hemophilia. In this disorder there are 5 disorders are included in our syllabus. First is color blindness, second hemophilia, third is sickle cell anemia, fourth is phenylketonuria, and fifth is thalassemia. Among them hemophilia we discussed earlier. Now today's our topic is color blindness. First of all the disease are linked with autosomal or allosomal chromosome. So hemophilia and color blindness are the sex linked inheritance, means they are linked with our X chromosome. On the X chromosome the gene is situated, there we write H and here we write C. C for color blindness and H for hemophilia. These two diseases are just same, means first of all it is sex linked disease. एंड सेक्स लिंक डिजीज में भी क्या होता है कि दो प्रकार की डिजीज है, एक अपन कहते हैं डोमिनेंट और दूसरा कहते हैं रिसेसिव. तो इट इज किसकी बात कर रहे हैं अपन? कलर ब्लाइंडनेस. तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया? इट इज सेक्स लिंक्ड डिजीज. सेकंड ये क्या है? इट इज रिसेसिव, मीन्स whenever homozygous conditions genes are present. यानी अगर अपन मेल की बात करें तो मेल में क्या है? सिंगल एक्स क्रोमोसोम है, दूसरा क्रोमोसोम क्या है? वाई है. तो इस एक्स क्रोमोसोम पे अगर कलर ब्लाइंडनेस का जीन सिचुएटेड है, इट मींस मेल इज सफर्ड फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस. और फीमेल के अंदर क्या होगा? देयर आर 2 एक्स क्रोमोसोम. सो whenever the gene of color blindness is present on a single chromosome, then the female is only carrier. While whenever both X chromosome get color blindness gene, then the female is suffered. So first of all it is sex linked recessive disorder due to defect in either red or green cone of eye, resulting in failure to discriminate between red and eye color. क्या होता है कि जो सफर्ड पर्सन है वो रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंशिएशन नहीं कर पाता. उसको रेड भी ग्रीन दिखाई देता है और ग्रीन भी ग्रीन दिखाई देता है, या ग्रीन रेड दिखाई देता है या रेड ग्रीन दिखाई देता है. मींस दोनों कलर में वो डिफरेंशिएशन नहीं कर पाता. इस डिजीज को अपन क्या कहते हैं? कलर ब्लाइंडनेस. और दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू म्यूटेशन. या तो म्यूटेशन से हो सकता है या डिलेशन से हो सकता है कोई भी डिसऑर्डर. तो यहां पर ये जो कलर ब्लाइंडनेस का डिसऑर्डर है वो ड्यू टू म्यूटेशन होता है. इट ओकर 8% ऑफ मेल, यानी मेल में ये कितने परसेंटेज है? 8% है. जबकि अगर हम फीमेल की बात करें तो ओनली 0.4% ऑफ फीमेल आर सफर्ड फ्रॉम दिस डिजीज, बिकॉज female has 2 X chromosome. So whenever both chromosomes obtain color blindness gene, then female is suffered. So we can see the inheritance of this disease, because there are so many mathematical questions are coming in the exam. कोई भी क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है, जैसे नॉर्मल अगर अपन बात करें कि whenever one
कैरियर वुमन इज मैरिड विद नॉर्मल पर्सन। एक कंडीशन ये हो सकती है कि देखिए जितनी भी कंडीशन है उन सब की डिस्कशन मैं यहाँ पे आपको करके बता देता हूं, उसके बाद में आपके कोई भी क्वेश्चन आए आप इजीली उसको कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन कर लेते हैं, एक कैरियर फीमेल है और कैरियर फीमेल की मैरिड जो है वो एक नॉर्मल मेल से होगी। तो सीधा अपन गेमेट फॉर्मेशन यहां न करते हुए, क्योंकि आप लोगों को पता है फर्स्ट ऑफ ऑल द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑकर्ड हियर, सो बोथ द क्रोमोसोम सेपरेट, देन हियर फीमेल एंड हियर मेल। अब इससे क्या होगा कि जो ऑफस्प्रिंग ऑब्टेंड होगी अपने पास, देख लीजिए क्या कंडीशन आई, वन फीमेल इज कैरियर एंड वन फीमेल इज नॉर्मल, one male is normal and one male is suffered because it has only single X chromosome। अब अपन बात कर लेते हैं दूसरी कंडीशन की कि एक कैरियर फीमेल है और उसकी मैरिज जो है वो एक सफर्ड मेल के साथ होगी। तो सफर्ड मेल के साथ होगी तो क्या कंडीशन आएगी, यहां देख लीजिए ये XC और ये X, ये XC और ये Y। तो यहां एक जो फीमेल होगी वो क्या होगी, सफर्ड होगी, और एक फीमेल जो है वो कैरियर होगी, और एक मेल जो है वो सफर्ड हो गया, और एक मेल जो है वो नॉर्मल है। तीसरी कंडीशन हम देख लेते हैं कि अगर एक सफर्ड फीमेल की मैरिज जो है वो एक सफर्ड मेल से होती है, तो इसकी जितनी भी ऑफस्प्रिंग होगी वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, मेल ऑफस्प्रिंग जो है वो सफर्ड हो जाएगी, और ये फीमेल ऑफस्प्रिंग भी क्या होगी अपने पास, देख लीजिए ये सफर्ड होगी। और यानी यहां अगर एक कलर ब्लाइंडनेस सफर्ड फीमेल की मैरिज जो है वो किससे हो रही है, एक सफर्ड मेल से हो रही है, तो उनके जितनी भी ऑफस्प्रिंग होगी वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, सफर्ड हो जाएगी। चौथी कंडीशन एक और बन सकती है अपने पास कि एक सफर्ड फीमेल है और उसकी मैरिज एक नॉर्मल मेल से होती है, तो क्या रेशियो आएगा अपने पास, देख लीजिए उसमें भी अपन करके देख लेते हैं। तो ये कैरियर फीमेल आ गई, ये भी यानी फीमेल उससे दोनों क्या हो रही है, कैरियर है, और मेल जो है वो क्या हो जाएगा, सफर्ड हो जाएगा। तो ये 4 कंडीशंस बनती है, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चंस न्यूमेरिकल के रूप में अपने को पूछा जा सकता है। तो ये था अपना कलर ब्लाइंडनेस। हीमोफीलिया हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अब अपन बात करते हैं किसकी, थर्ड वन की। थर्ड वन क्या है अपने पास, सिकल सेल एनीमिया। देखिए नॉर्मली मैं आप लोगों को बता दूं, पिछले साल आप लोगों ने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में वी नो दैट वन पर्सन हैज 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड। नाउ एनीमिया मीन्स लैक ऑफ ब्लड, बट एज the student of biology we know that the volume of blood remains same in the body, but the amount of hemoglobin is decreases in sickle cell anemia or any type of anemia. Normal hemoglobin condition is 14 to 16 milligram per 100 ml of blood. Whenever this condition is decreases, then the person get सफर्ड फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया। अब सिकल सेल एनीमिया है क्या, तो वो देख लीजिए आप कि नॉर्मल जो आरबीसी होती है उसकी शेप जो है वो सर्कुलर या स्फेरिकल होती है, एंड व्हेन दिस शेप इज चेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ दिस टाइप और वी कैन से सिकल्ड, देन द पर्सन सफर्ड फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया बिकॉज hemoglobin joined with oxygen and make oxyhemoglobin, and in the form of oxyhemoglobin the oxygen is transported throughout the cells, and whenever hemoglobin get sickled, then much amount of oxygen is not transported by this hemoglobin, because normal hemoglobin carries 4 atoms of oxygen
and sickled hemoglobin may be 1 or 2 atom of oxygen transport. As we know, there are two types of chromosome in human being, autosomal and allosomal. So sickle cell anemia is the autosomal linked recessive disorder. Means first of all, autosomal chromosome linked disease, and this disease is effective at the recessive, homozygous, रिसेसिव और होमोजाइगस कंडीशन. देखिए अपन ने मेंडल के एक्सपेरिमेंट पढ़े थे, तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट की अगर बात करें अपन, एक नॉर्मल उदाहरण ले, अपन एक टोल प्लांट का क्रॉस जब हम करवाते हैं किससे, ड्वार्फ प्लांट से, तो F1 जनरेशन में क्या आई अपने पास, ये कंडीशन आई, मींस heterozygous condition. So this disease is not effective in the heterozygous condition. This disease is effective only in the homozygous recessive condition. ये जब कंडीशन आएगी, जब हम F1 का क्रॉस F1 से कराएंगे, तो F2 जनरेशन में अपने को जो रेशियो ऑप्टेंट होगा वो क्या होगा, 3:1. तो ये 1 वापस क्या आ गया, ये 1 वापस रिसेसिव आ गया. तो ये रिसेसिव कंडीशन में क्या होती है, ये डिजीज इफेक्टिव होती है, और डिजीज को कंट्रोल करने वाली जो जीन है वो HBS और HBS. तो HBA जो है यहाँ पे, ये नॉर्मल कंडीशन है और डोमिनेंट कंडीशन है, और HBS जो है वो एक रिसेसिव कंडीशन है. अब एक्चुअल में होता क्या है कि हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ आयरन एंड ग्लोबिन, एंड ग्लोबिन इज अ प्रोटीन, एंड एज यू नो प्रोटीन इज द एसोसिएशन ऑफ 20 एमिनो एसिड विद पेप्टाइड बॉन्ड. तो नॉर्मली क्या होगा कि जब पेप्टाइड बॉन्ड कॉन्जॉइंट होते हैं तब इनकी एक सीरीज होती है, वो मैं आपको वर्ड पे लिख के बता रहा हूं. तो उस सीरीज में क्या होता है, 6th एमिनो एसिड जो है वो ग्लूटामिक एसिड होता है, और उस ग्लूटामिक एसिड के प्लेस पे क्या आ जाता है, वेलिन आ जाता है. ग्लूटामिक एसिड के प्लेस पे वेलिन आ जाता है. तो वेलिन के आ जाने से जो नॉर्मल आरबीसी है वो कन्वर्ट हो जाती है या डिसऑर्डर हो जाती है, और उसकी स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाती है. तो ये देखिए सीरीज, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलिन, हिस्टामिन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, ल्यूसीन, ग्लूटामिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड. ये नॉर्मल कंडीशन है. मींस फर्स्ट ऑफ ऑल वेलिन, फिर हिस्टीन, फिर ल्यूसीन, फिर थ्रियोनिन, और थ्रियोनिन के बाद में प्रोनिन, और 6th प्लेस पे क्या है, ग्लूटामिक एसिड है. तो ये तो नॉर्मल कंडीशन है. तो नॉर्मल कंडीशन की अगर अपन बात करते हैं तो ये तो आ जाएगी अपनी हेटेरोजाइगस कंडीशन, और ये नॉर्मल की क्या हो जाएगी, HBA. ये होमोजाइगस डोमिनेंट है और ये हेटेरोजाइगस है. और सफर्ड जो पर्सन होगा उसमें क्या होगा, वही सिंगल 1 नंबर पे वेलिन, 2 नंबर पे हिस्टामिन, 3 नंबर पे ल्यूसीन, 4 नंबर पे थ्रियोनिन, 5 नंबर पे प्रोलिन, और 6th नंबर पे यहाँ ग्लूटामिक एसिड के प्लेस पे क्या आ जाएगा, वेलिन आ जाएगा. वेलिन एमिनो एसिड आने से जो ग्लोबिन सीरीज है वो डिसऑर्डर हो जाएगी, और डिसऑर्डर होने के कारण शेप जो है वो आरबीसी की वो कन्वर्ट हो जाती है. और दूसरी चीज, ये डिजीज भी क्या है, नॉन सेक्स क्रोमोसोम लिंक्ड है, और ये किसके ऊपर सिचुएटेड है, नॉन ऑटोसोमल क्रोमोसोम के ऊपर सिचुएटेड है, और ग्लोबिन की जो सीरीज है उसमें चेंज होने के कारण शेप ऑफ आरबीसी जो है वो चेंज हो जाती है. तो ये था अपना सिकल सेल एनीमिया. नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट फेनिल कीटोन्यूरिया. फेनिल कीटोन्यूरिया, दिस disease is inborn error of metabolism and is also inherited as a autosomal recessive trait. Means first of all क्या है, इसका जो जीन सिचुएटेड होता है वो भी किसके ऊपर है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर सिचुएटेड है. ठीक है. तो 2 टाइप के क्रोमोसोम, एलोसोम एंड एटोसोम. ऑटोसोम मीन्स
वेजिटेटिव क्रोमोसोम और एलोसोम मीन्स सेक्स क्रोमोसोम। सो फेनिलकीटोन्यूरिया का जो जीन है वो किसके ऊपर सिचुएटेड है, ऑटोसोमल के ऊपर सिचुएटेड है। और ये डिजीज भी क्या है, इफेक्टिव होती है जब ये रिसेसिव कंडीशन में हो। और दूसरी बात, ये एक इनबॉर्न एरर है किसकी, मेटाबॉलिज्म की। तो यू नो वेरी वेल व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज द कंसिस्ट ऑफ catabolism and anabolism, and catabolism is breakdown of higher molecular or higher compound in smaller molecule, and anabolism is called smaller molecule conjoint and make a higher compound, that is called anabolism, and catabolism and anabolism consistently called metabolism. So this disease is metabolism borne disease. Now the affected person lack an enzyme that converts amino acid phenylalanine into tyrosine. देखिए इस डिजीज में क्या होता है कि ये जो फेनिलएलेनिन है, ये फेनिलएलेनिन जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, टायरोसिन में कन्वर्ट होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ फेनिलएलेनिन hydroxylase enzyme, whenever this enzyme is absent, then this phenylalanine is converted into phenylpyruvic acid and their derivatives. So phenylalanine is do not convert into tyrosine in the absent of phenylalanine hydroxylase enzyme। और जब फेनिलएलेनिन एमिनो एसिड जो है वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता है और वो किस में कन्वर्ट हो गया, phenylpyruvic acid and their derivatives, then this pyruvic acid or phenylalanine stored in the body, and by storing this in the body, the kidney does not also absorb this phenylalanine, and this is secreted by the urine, and a person which has phenylketonuria is mentally retarded, or we can say the brain result in mental retarded. So this is phenylketonuria. And now last topic of our Mendelian disorder is thalassemia. Thalassemia is also autosomal linked recessive blood disease, मीन्स इसका जो जीन है वो भी किसके ऊपर सिचुएटेड होता है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर सिचुएटेड होता है। और ये डिजीज भी कब इफेक्टिव होती है, ये डिजीज भी रिसेसिव कंडीशन में इफेक्टिव होती है, डोमिनेंट कंडीशन में ये इफेक्टिव नहीं होती है। अब इसमें भी सेम सिकल सेल एनीमिया की तरह, सिकल सेल एनीमिया में तो क्या होता है, आरबीसी की जो स्ट्रक्चर है, शेप है, वो चेंज हो जाती है। लेकिन यहां क्या होता है, जो ग्लोबिन प्रोटीन है वो ग्लोबिन प्रोटीन की 2 टाइप्स की सीरीज होती है, एक अल्फा और एक बीटा। तो अल्फा थैलेसेमिया के अंतर्गत तो क्या होगा कि उसके ग्लोबिन के सिंथेसिस में क्या आ जाएगी, डेफिशिएंसी आ जाएगी। और यानी यहां अपन कह सकते हैं थैलेसेमिया इज ऑफ 2 टाइप, अल्फा थैलेसीमिया को कंट्रोल करने वाला जो जीन है वो क्या है, वो भी आपको याद रखना है, HBA1 एंड HBA2। और जो बीटा थैलेसीमिया है, उस बीटा थैलेसीमिया को कंट्रोल करने वाला जीन जो है वो है HBB। तो ये भी आपको कंडीशन याद रखनी है। अल्फा थैलेसीमिया के अंतर्गत तो क्या होगा कि ग्लोबिन के सिंथेसिस में डेफिशिएंसी आ जाती है, जबकि बीटा थैलेसीमिया में
क्या होता है कि ये जो सीरीज है किसकी, ग्लोबिन की, वो सीरीज जो है वो डीनेचर हो जाती है। तो द डिफेक्ट कुड बी ड्यू टू आइदर म्यूटेशन और डिलेशन ऑफ क्रोमोसोम। तो ये डिजीज भी क्या किससे बोर्न होती है, या तो ये म्यूटेशन से बोर्न हो जाएगी या फिर डिलीशन, ये अपन क्रोमोसोमल एब्रेशंस के अंतर्गत पढ़ेंगे। मतलब क्रोमोसोम का कोई पार्ट जो है वो टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा जितनी उसकी लेंथ होगी। तो उस म्यूटेशन और डिलेशन ऑफ क्रोमोसोम्स के इफेक्ट से थैलेसीमिया डिजीज जो है वो बोर्न होती है। तो दो सीरीज जो है किसकी, ग्लोबिन की, एक अल्फा सीरीज है और एक बीटा सीरीज है। तो अल्फा थैलेसीमिया के अंतर्गत तो क्या होगा कि ग्लोबिन का सिंथेसिस जो है उसमें कमी आ जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, और उसमें डेफिशिएंसी होने से हीमोग्लोबिन की अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अल्फा थैलेसीमिया इज द प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन is affected, while in beta thalassemia production of beta globin chain affected, or alpha thalassemia is controlled by two closely genes HBA1 and HBA2, while beta thalassemia is controlled by HBB. This is due to this a person also obtained anemia condition, and in anemia condition we know that amount of hemoglobin is decreases. So these are the Mendelian disorder. Now in this chapter only chromosomal disorders are remaining. In chromosomal disorder we can study about aneuploidy and polyploidy. और एक चीज आप लोग और देख लीजिए, जिन्होंने नई बुक ली है, नई बुक वालों के तो इस चैप्टर में ही दो चीज और आ जाएगी। एक तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, और दूसरा अपना एक प्लियोट्रोपी रह गया है। तो जो जिनके पास पुरानी बुक है, उस पुरानी बुक में जहां चैप्टर अपने एंड हो जाते हैं, उस चैप्टर के एंड में प्लियोट्रोपी और सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी भी दिया हुआ है, और जिन्होंने नई बुक ली है उनके रेगुलर कंडीशन में ये दी हुई है। तो अपनी दो चीज रहेगी, एक तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और दूसरा सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी एंड प्लियोट्रोपी. So that will we study in our next video. Till then, thank you.